Journey to Canaan. We all are traveling towards Canaan, that is the real heaven, to be with the Lord forever. Meditation about the journey of Israelites towards their destination will definitely help us to understand God's guidance. So in this video we are going to meditate about the beginning of their journey towards Canaan. कनान की यात्रा। हम सभी हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहने के लिए कनान यानी वास्तविक स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं। इसराइलियों की उनके गंतव्य की ओर यात्रा के बारे में ध्यान निश्चित रूप से हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन के बारे में समझने में मदद करेगा। इसलिए इस वीडियो में हम कनान की ओर उनकी यात्रा की शुरुआत के बारे में ध्यान करने जा रहे हैं। It started with breaking the Egyptian bandages. If we read the Bible, we could understand that Israelites were slaves at Egypt for 430 years. By the time God made Canaan the best living place in the world through Canaanites. The scripture says thus about Canaan, and I have promised to bring you up out of your misery in Egypt into the land of the Canaanites, Hittites, Amorites, Hittites, and Jebusites, a land flowing with milk and honey. इसकी शुरुआत मिस्र के बंधनों को तोड़ने से हुई थी। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इजरायली 430 साल तक मिस्र में गुलाम थे। उस समय तक भगवान ने कनानियों के माध्यम से कनान को दुनिया में सबसे अच्छा रहने का स्थान बना दिया था। शास्त्र इस प्रकार कनान के बारे में कहता है, और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें मिस्र में तुम्हारे दुख से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और एबूसी लोगों के देश में ले आऊंगा, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। God not only prepared the land but prepared them a leader to lead them out of Egypt. Moses learned humbleness, perseverance, patience and meekness during his 40 years of stay in the wilderness. Initially we would have been seen an angry Moses who was a killer if he was the same Moses who called to lead Israelites, most rebellious tribes in the world, as God have said. He would have been destroyed them out of rag in the midst of the journey to Canaan. But as God prepared him earlier, he forgave many of their mistakes and interceded God many times on their behalf. परमेश्वर ने न केवल एक देश तैयार किया बल्कि उन्हें मिस्र से बाहर ले जाने के लिए एक नेता भी तैयार किया। जंगल में अपने 40 वर्षों के प्रवास के दौरान मूसा ने विनम्रता, दृढ़ता, धैर्य और नम्रता सीखी। प्रारंभ में हम एक क्रोधित मूसा को देख सकते थे जो एक हत्यारा था। यदि वह वही मूसा था जिसे इस्राएलियों का नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया था, दुनिया में सबसे विद्रोही जनजाति जैसा कि भगवान ने कहा है, तो वो उन्हें कनान की यात्रा के बीच में क्रोध से नष्ट कर देता। लेकिन जैसा कि भगवान ने उन्हें पहले तैयार किया था, उन्होंने उनकी कई गलतियों को माफ कर दिया और उनकी ओर से कई बार भगवान से विनती की। Our God is a wonderful creator who created everything before creating mankind. So be satisfied that until you start with your heavenly abode, you lack nothing. God is our provider. हमारा ईश्वर एक अद्भुत रचनाकार है जिसने मानव जाति को बनाने से पहले सब कुछ बनाया। इसलिए संतुष्ट हो जाइए कि जब तक आप अपने स्वर्गीय गर्भ से शुरू नहीं करते, तब तक आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। भगवान हमारे प्रदाता है। Israelites knew very little about God's sovereignty. God allowed 10 plagues to teach the Pharaoh who didn't allow Israelites according to God's order, and he exhibit his sovereignty to the whole world and to the Israelites. Expert says that the 10 plagues represents the fullness of God's expression of justice and judgment upon those who refuse to repent. इजरायली परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में बहुत कम जानते थे। परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को फिरौन को सिखाने की अनुमति दी, जिसने परमेश्वर के आदेश के अनुसार इस्राएलियों को जाने की अनुमति नहीं दी, और उसने अपनी संप्रभुता को पूरी दुनिया और इस्राएलियों के लिए प्रदर्शित किया। विशेषज्ञों का कहना है कि 10 विपत्तियां न्याय की परमेश्वर की अभिव्यक्ति की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन लोगों पर न्याय करती है जो पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। These 10 Egyptian plagues not only represents God's power to Moses,
the children of Israel, the Egyptians, and the Pharaoh, but they were of such magnitude that they would be remembered all generations throughout the entire world. They again testify that salvation from the beginning to end is only accomplished through Jesus Christ, the author and finisher of our faith. As God's children, we must obey God actively to receive salvation. मिस्र की इन 10 विपत्तियों ने न केवल मूसा, इस्राएल के बच्चों, मिस्रियों और फिरौन को परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि वे इतने बड़े पैमाने पर थे कि उन्हें पूरी दुनिया में पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाएगा। वे फिर से गवाही देते हैं कि आदि से अंत तक उद्धार केवल हमारे विश्वास के लेखक और समाप्त करने वाले यीशु मसीह के माध्यम से पूरा किया जाता है। आज परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। Looking back over the instruction that is given to Pharaoh, let my people go that they may serve me. This principle manifests throughout. Service to the Lord is the requirement of his people. Egyptian slaveness represents the bondages of Satan. During the Passover, the bondages of Egyptians had broken once for all. The same way, when we come under salvation, the blood of Jesus breaks the every bondages of darkness from our life and make us free spiritually. All of us are invisible bandages of this world like self-adoration, poverty, sorrow, fear, anxiety, brokenness, crookedness, addiction, and so on. फिरौन को दिए गए निर्देशों पर पीछे मुड़कर देखें। मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी सेवा करें। ये सिद्धांत पूरी तरह से प्रकट होता है। यहोवा की सेवा उसके लोगों की मांग है। मिस्र की गुलामी शैतान के बंधन का प्रतिनिधित्व करती है। मिस्रियों के बंधनों को पार करने के दौरान एक बार हमेशा के लिए टूट गया था। उसी तरह जब हम उद्धार के अधीन आते हैं, यीशु का लहू हमारे जीवन से अंधकार के सभी बंधनों को तोड़ देता है और हमें आत्मिक रूप से स्वतंत्र करता है। हम सभी इस दुनिया के अदृश्य बंधनों में हैं, जैसे आत्म आराधना, दरिद्रता, दुहक, भय, टूटन, कुटिलता, व्यसन आदि। Only a true salvation will break the chain of such things. If you feel that anyone is under such bondages, evangelize them, bring to God. His light will drive all the darkness from their life and enlighten their life forever. Service to God is expected out of every believer who have already freed from darkness. Understand your purpose in life and help the people to unchain themselves through salvation. May God bless you till we meet again. केवल एक सच्चा उद्धार ही ऐसी सभी चीजों की जंजीर को तोड़ सकता है। यदि आपको लगता है कि कोई भी इस तरह के बंधन में है, तो उनका प्रचार करें और उन्हें भगवान की ओर ले जाएं। उसका प्रकाश सारे अंधकार को दूर कर देगा और उनके जीवन को हमेशा के लिए आलोकित कर देगा। हर उस विश्वासी से परमेश्वर की सेवा की अपेक्षा की जाती है जो पहले ही अंधकार की जंजीरों से मुक्त हो चुका है। जीवन में अपने उद्देश्य को समझें और लोगों को मुक्ति के माध्यम से खुद को बंधनों से मुक्त करने में मदद करें। जब तक हम फिर से नहीं मिलते, तब तक भगवान आपको आशीर्वाद दे।